Hi everyone, welcome to my channel. So in this video I'm going to discuss this Codeforces 798 Div 2 contest, and myself Anmol, I'm member technical at DE Shaw. And so yeah, let's get started. So first problem is the LEX string. So what is given in this problem is like you are given two strings and you could perform certain operations, and you have to find the minimum lexicographically smallest possible string C. Okay, so let me take this example for the my approach, clarification and explanation. So, and you could read out this problem and you could stop the video or think out of the solution, or like if you have read the problem and you are unable to solve it in the contest, then you could look at the solution video which I am going to upload. So like this is A string and this is B string. So you have to create the C string which is having the minimum, which is the minimum lexicographically smallest, and you could read what is the minimum lexicographically smallest string, and it's mentioned over here. So basically what kind of operations you could perform, like you could perform is like from a particular string A you could remove the characters k number of times, and then you have to remove, then you could remove from the string B k number of times, and vice versa, like it would go on. So you have to tell the minimum lexicographically possible string. So basically what, like there could be multiple approaches for it, but what I have done and what worked for me, I'll tell you that. So basically like I have created the multiset out of this. So A comes at the position of the 0 in the alphabets from A to Z. So what I have inserted is 0, 6 times zeros, which are denoting 6 A's. So basically for every character I'm subtracting its ASCII value. ASCII value of A minus its ASCII value of A would give you 0, and similarly if you will subtract the ASCII value of B minus ASCII value of A, it would give out to 1. So this would be the multiset M1. Similarly multiset M2 would be 1 1 1 1. It would be 4 times. So what I'll do, I'll remove the K. So let's say you will start from M1. Okay, so basically in my solution, like I have calculated for both, from if you are starting from M1 or if you are starting from M2. So let us look, like let's suppose the M1's initial character, M1 begin character, is less than the M2 begin character. So yeah, so 0 is less than 1. So what you will do, like you would take out the k number of times from here, and you would insert it over here. So basically like if 0 is you would insert two zeros over here in the C string. Now you would check, now अब तुम आगे नहीं बढ़ सकते इसमें. So what you will do, like you have to take out the character from the B string. So you will take out this one from over here. You won't be taking out this one also, because your permissible limit is 2, but you won't be taking it out because it will lead to the formation of the character, formation of the string C, which would be like, which would not be lexicographically smallest. क्योंकि अगर ए बी बी आ जाएगा और ए बी ए, सो ए बी ए इज ऑब्वियसली लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर देन ए बी बी. So similarly, like, so what you will do, like 0 0 and 1, then you will again pop out 0 0, and similarly like in this way you would go on. So this was the major catch in this problem. And so similarly, like if you would follow this path, so now again you have removed 0 0, now you would insert this one, now again 0 0. So it would lead to this, and you could verify it on the further test cases or what. So now let me show you the code. So basically like inserting this AI minus its ASCII value, I told you what is this, then I am calculating for both of these strings. Okay, so what I have done is like I am taking this temporary as k, then आई एम टेकिंग दिस टाइम टू फॉर मेंटेनिंग द ऑर्डर कि फर्स्ट कौन जाएगा, उसके बाद सेकंड, मतलब कॉन्सिक्यूटिवली होने चाहिए, राइट. यू वोंट बी वांटिंग कि ए के बाद ए के अंदर के ऑपरेशंस के बाद फिर से दोबारा ए के अंदर के ऑपरेशंस हो जाए. सो उसके लिए लाइक आई क्रिएटेड दिस वाइल लूप एंड आई एम चेकिंग लाइक इज नॉट M1 empty. देयर वाज दिस कंडीशन कि अगर स्ट्रिंग में से, दोनों में से कोई सी भी स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाती है, देन यू हैव टू स्टॉप. सो बेसिकली डेट आई हैव डन कि मैंने सी के अंदर इंसर्ट कर दिया, टेम्प को सब्ट्रैक्ट कर दिया, then I did erase that particular thing because वो insert हो गया है. फिर मैंने चेक किया अगर मेरा M1 empty है
एंड M1 एम नहीं है, और मैंने चेक किया कि अगर मेरा जो भी M1 के स्टार्टिंग का कैरेक्टर है वो M2 के कैरेक्टर से बड़ा है तो मैं ब्रेक कर जाऊंगा, मेरे को यहाँ पर फॉरवर्ड जाने का कोई लॉजिक नहीं है, आई हैव टू मूव इन दिस पार्ट। मतलब ये चीज़ तुम्हें समझ आनी चाहिए बिकॉज इट वॉज द मेजर थिंग कि अगर तुम्हारे पास सपोज करो यहाँ पर तुम्हारे पास 0 2 2 2 लेट मी रेज इट 0 2 2 2 होते, ठीक है। अभी तो तुमने 0 इंसर्ट कर दिया, उसके बाद तुम 2 इंसर्ट करने जा रहे थे, ठीक है। तुम ये चेक तो मैंने क्या किया, मैंने 0 को तो पहले निकाल दिया, M1 के सेट के अंदर से मैंने 0 को इरेज कर दिया, ठीक है। अब तुम उसके बाद चेक करोगे, अब M1 के बिगिन में क्या है, 2 है, 2 इज ग्रेटर देन 1। सो इसका मतलब क्या है कि तुम M1 में से नहीं लोगे, तुम M2 में से लोगे। तो वही मैंने किया है, यहाँ से मैंने ब्रेक कर दिया, फिर M2 मेरा 1 माइनस M2 हो जाएगा, और फिर मैं दोबारा से दूसरी स्ट्रिंग में मूव ऑन करने लग जाऊंगा। तो इससे क्या होगा, मेरे को मिनिमम ही मिलेगी। I think it must be clear, and if it's not clear, then you could join my Telegram group or you could comment it out in the comment section. I'll try to answer and make sure that you understand this thing. And you could check the code out and you could try run it. And yeah, it was quite easy if you have done this previously. And there could be several other approaches also. I'll also see it after the contest. So yeah, and let me dry run this code over on our problem on one of the test case so as to give you much better idea. So let me take this example too for your understanding, right? 593 C AACA is your first string, and BED EDE DEB. Okay, so for this M1 की क्या होगी हमारे पास, and if you are following me with this, so you would be able to easily get कि M1 के अंदर क्या क्या होगा। so M1 के अंदर होंगे हमारे 3 zeros denoting 3 ones, and 2C को डिनोट करने के लिए 2 2 होंगे हमारे पास। सिमिलरली M2 के अंदर क्या होगा, B को डिनोट करने के लिए B हमारा 1 होगा, ये फर्स्ट पोजिशन A B C D E F, तो 0 1 2 3 4 ऐसे एस का वैल्यू माइनस कर रहे हो तो उससे ये ऑर्डर आ जाता है। सो यू मस्ट बी नोइंग इट। सो अब ये इन दो को बी को डिनोट करने के लिए 1 1 आ गया। उसके बाद क्योंकि ये मल्टी सेट है दे वुड बी सॉर्टेड, तुम वेक्टर के अंदर इंसर्ट करके भी उसे सॉर्ट कर सकते थे, बट या तो मुझे थोड़ा सा मल्टी सेट मैंने यूज़ किया। यू कुड यूज़ अनदर डेटा स्ट्रक्चर ऑल्सो। सो अब डी यहाँ पर 3 डी है, सो इट वुड बी 3 and 3 B C D, and for E like there are 4 E's, so you would be inserting 4 4s। तो ये हमारा M1 और M2 होगा। and let me check the number of the characters, 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8। okay, I missed one, BB 4 times E 3 times, okay, it was 3 times D। okay, so now let's मूव कि पहले तो मैंने M1 से स्टार्ट किया। मैंने क्या किया है कि मैंने अपनी स्ट्रिंग दोनों जगह से मंगवाई है कि अगर मैं M1 से स्टार्ट कर रहा हूँ या M2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि अब मैं ये चेक कर रहा हूँ कि अब कोड के थ्रू चलते हैं कि हमने कोड में क्या किया है। फर्स्ट आई एम सेटिंग दिस temp इज इक्वल टू K, तो K हमारा 3 है तो मैंने temp की वैल्यू 3 रख दी है। temp2 ट्रू है, मैंने M1 पास किया है तो M1 में पहले हम जाएंगे, हम पहले यहाँ पर आ गए, तो temp इज ग्रेटर देन 0 येस, M1 इज नॉट empty येस, then I'll insert first character into my C string and I'll decrement the value of temp। तो अब जब मैंने ये इंसर्ट कर दिया है, अब जब मैंने ये वाला इंसर्ट कर दिया है कैरेक्टर C के अंदर, तो और मैंने ये डिक्रीमेंट कर दिया, उसके बाद मैं क्या चेक करूँगा कि ये वाली वैल्यू मेरी इस वाली वैल्यू से बड़ी है या छोटी है, तो ये छोटी है तो मैं इसी को ही इंसर्ट करूँगा। मैंने फिर से इंसर्ट कर दिया। सिमिलरली फिर मैंने इसको दोबारा से इंसर्ट कर दिया कि की परमिसेबल वैल्यू थी 3, तो अब मैं यहाँ से बाहर आ जाऊँगा, ठीक है। अब इस लूप से मैं बाहर आ जाऊंगा, मैं temp2 को दोबारा सेट कर दूंगा 1 माइनस temp2। अब मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, तो अब मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि ये वैल्यू मेरी इस वाली वैल्यू से छोटी है तो मैं इसी में चलूँगा। सिमिलरली ये भी छोटी है इससे, पर अब मैं जैसे यहाँ पर आऊँगा तब मैं देख लूँगा कि ये वैल्यू मेरी बड़ी है इससे, तो मेरे को यहीं पर ही जाना था वापस। तो अब मैंने 3 zeros और 2 1 इंसर्ट कर दिए,
3 zeros और 2 1 इंसर्ट कर दिए, 1 1, ठीक है। तो अब ये वैल्यू मेरी छोटी हो गई थी, तो अब मैं यहाँ चलने लगूंगा, तो अब ये 2 और ये 2 फिर से मैं इंसर्ट कर दूंगा। मेरी परमिसिबल वैल्यू है 3, तो मैं 2 तो इंसर्ट कर ही सकता हूँ 2 टाइम्स। सो ये मेरी फाइनल स्ट्रिंग है, इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया है बी बी और सी सी, triple A B B C C, and let's check the answer out. So it's working perfectly fine. You could run more of the test cases. It would absolutely work fine because it's passing the pre-test. So yeah, that was it in this problem. So now let's move on to the second problem. Okay, problem A is sorted. Now let's move towards the problem B. So इसमें क्या हमें दे रखा है, इसमें दे रखे हैं हमें एक array of the numbers of the इंटीजर्स, एंड सो हमें क्या बताना है कि हमें एक ऐसा परमिटेशन बताना है जो मिनिमम हो, लेक्सियोग्राफिकली मिनिमम हो, और उसके अंदर कोई भी पोजीशन रिपीटेड ना हो। लाइक जैसे 1 2 3 है, तो अगर तुम एक ऐसा बना दोगे 2 1 3, सो इसमें 3 और 3 की पोजीशन सेम है, सो इट वोंट वर्क। जबकि अगर तुम इसको ऐसे बना देते 2 3 1, सो इट वुड वर्क, ठीक है। तो 2 3 1 बना देते, तो अब तुम्हें यहाँ पर और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, लाइक 1 3 2 3 2 1। फर्स्टली 1 3 2 इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि 1 और 1 की पोजीशन सेम है, तो ये नहीं चलेगा। 3 2 1 चल सकता था, बट उससे छोटा तो यही है क्योंकि 2 से छोटा 3 से छोटा 2 है, तो ऐसा कुछ हमें करना था। तो फर्स्ट कैच तो यही था प्रॉब्लम में कि यू हैव टू लुक एट दिस n इज इन द रेंज ऑफ द 1000। तो इसे देखते ही आइडिया आना चाहिए कि n स्क्वायर चल जाएगा, एंड ऑब्वियसली इट्स b ऑल्सो, इट्स b प्रॉब्लम, सो इट हैव टू बी समवट ईजियर। सो इसके लिए तो मैंने क्या किया, इसका कोड काफ़ी सिंपल था। लाइक फर्स्टली आई टुक इन द वेक्टर, वेक्टर के अंदर मैंने वो n अपने इंटीजर्स ले लिए, उसके बाद मैंने वेक्टर इन v2 को असाइन कर दिया v के इक्वल, देन आई हैव सॉर्टेड इट। तब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि मैं जैसे अगर मैं थोड़ा सा बड़ा लेता हूँ, मैं बताता हूँ मैंने क्या किया है। लाइक इट्स 2 3 4 5 1, 2 3 4 5 1, ठीक है। तो ये है 2 3 4 5 1। तो मैंने क्या किया, पहले मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे सबसे मिनिमम कैरेक्टर लेके आ पाऊँ। तो मैं पहले ट्राई कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे 1 को ले आऊँ, ठीक है, 1 आ गया, और मैंने इसको पोजीशन से स्वैप कर दिया, तो अब मेरा ये बन गया 3 4 5 2। अब ये 3 और ये 3, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्टली लाइक पहले तो मैंने वेक्टर को सॉर्ट कर लिया अपने, इट्स 1 2 3 4 5। तो मैंने क्या चेक किया कि 2 मेरा 1 के इक्वल नहीं है, तो ठीक है मैं आगे बढ़ जाऊँगा। ये 2 और 3 भी मेरा इक्वल नहीं है, तो मैं आगे बढ़ गया। सिमिलरली 4 और 3 मेरा इक्वल नहीं है, तो मैं आगे बढ़ गया। 5 और 4 भी इक्वल नहीं है, और 1 और 5 भी इक्वल नहीं है, तो मैं आगे बढ़ गया। ये इस केस में तो वर्क कर गया है। बट अब तुम ये वाला सिनेरियो देखो, 2 3 1 4 वाला, 2 3 1 4, और इसको मैंने सॉर्ट किया तो ये बन गया 1 2 3 4। तो अब मैंने क्या देखा कि 1 और 2 इक्वल नहीं है, तो मैं आगे बढ़ गया। 2 और 3 भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, बट यहाँ पर ये इक्वल हो गए। तो अब मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे को सबसे लेफ्ट में जाके जो भी मेरी वैल्यू 4 के इक्वल नहीं है, जैसे अगर मैं यहाँ पर गया तो मैंने क्या चेक किया, ये वाली जो मेरी वैल्यू है ये 4 के इक्वलेंट नहीं है, क्योंकि 4 तो यहीं पर ही था। तो मैं इन दोनों को स्वैप कर दूंगा, तो मेरे को मिनिमम ही मिलेगा, ठीक है। तो मैंने इतना सा ही किया है इस कोड में। लाइक आई हैव डन दिस सिंपल थिंग ओनली, कि मैंने फर्स्टली चेक किया कि मेरे राइट साइड में कोई पॉसिबिलिटी ऐसी है जिससे मैं स्वैप कर सकूं। जैसे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा था, ठीक है। अगर मेरे पास कोई राइट साइड में ऐसी पॉसिबिलिटी होती जिससे मैं स्वैप कर सकता, अगर जैसे मेरे पास 2 3 1 4 5 6 1 2 3 4 5 6 था जैसे, तो अब ये तो इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, तो तुम यहाँ पर पहुँच गए। तो अब तुम यहाँ पर इसे स्वैप करना चाह रहे हो। अच्छा, इस 4 को मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि अगर मैं इस 4 को यहाँ वाले एलिमेंट से स्वैप करूँगा तो मेरा मिनिमम आंसर आएगा। अगर मैं यहाँ वालों से स्वैप कर दूंगा पहले ही, तुम ये कहते कि 3 के साथ स्वैप कर दो, तो वो मिनिमम नहीं आता क्योंकि 4 बड़ी वैल्यू है 3 से। तो उस केस में तुम्हारा आंसर कुछ ऐसा हो जाता जो कि पॉसिबल सबसे मिनिमम नहीं है।
अगर तुम इस 5 को यहाँ पर ले आओ, 1 2 3 5 4, और इस 6 को यहाँ ले आओ, 4 को यहाँ ले आओ, तो ये तुम्हारा लेक्सियोग्राफिकली मिनिमम है इस वाली कंडीशन से। अगर तुम 1 2 3 1 2 4 3 5 6 से ले आते तो, क्योंकि 4 और 3 वैसे ही 4 बड़ा है 3 से, तो ये चीज़ नहीं है पॉसिबल। तो तुम्हें पहले क्या ट्राई करना है कि तुम राइट वालों से किसी तरह मैनेज करके शिफ्ट करवा लो, और उसके बाद एंड में अगर तुम्हारे यहाँ पर पोजीशन स्वैप वैप करने के बाद ये पोजीशंस तुम्हारी इक्वल नहीं होती हैं, ये वैल्यूज़ इक्वल हो जाती हैं, तो तुम क्या करोगे कि तुम जो भी एक वैल्यू तुम पीछे से जाओ, और जो भी नॉन इक्वल है उसको तुम स्वैप कर दो इस वाली वैल्यू के साथ। तो इतना से ही कैच था कि मैंने क्या किया कि मैंने राइट साइड में अपना मिनिमम निकाला है, उससे मैंने स्वैप कर दिया मेरी करंट इंडेक्स को। अच्छा, अब अगर इन केस मैंने यहाँ पर टेम्प को फॉल्स कर दिया है, तो अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि मैं पीछे से चलना शुरू करता हूँ। मैंने क्या चेक किया कि अगर मेरा v ऑफ n माइनस वन इज़ इक्वल टू v2, मतलब लास्ट वाली कैरेक्टर तुम्हारी इक्वल है, तो तुम क्या करो, पीछे से चलो, और जो भी तुम्हारी वैल्यू, एक भी वैल्यू तुम्हें ऐसी मिलती है जिसके v ऑफ j इज़ नॉट इक्वल टू v2 ऑफ n माइनस वन है, तो तुम उससे स्वैप कर दो और ब्रेक कर जाओ, इससे बाहर आ जाओ इस लूप से। एंड इफ़ v, अब ये सब करने के बाद अगर तुम्हारा इक्वल नहीं है तो मैंने टेम्प को ट्रू सेट कर दिया। अगर नहीं होता इसके बाद भी, मतलब सपोज करो अगर तुम्हारे पास एक कंडीशन ये होती कि 1 और 1 ही प्रेजेंट है, ये खाली मतलब सिंगल n इज इक्वल टू 1 है, तो उस केस में पॉसिबल नहीं होगा। v ऑफ n माइनस वन हमेशा v2 ऑफ n माइनस वन के इक्वल ही रहेगा, तो उस केस में -1 आएगा। तो अगर मेरा टेम्प ट्रू है तो मैंने v2 को प्रिंट कर दिया है, वरना -1 आएगा आंसर। तो यही कैच था इस प्रॉब्लम में। एंड दिस कंडीशन इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड, मतलब स्वैप कर दो किसी भी अनदर एलिमेंट से, क्योंकि 4 तो पीछे, जो भी तुम्हारा यहाँ पर है वैल्यू, ये 6 पहले से ही है, और ये वाली वैल्यू भी ये वाली वैल्यू के इक्वल नहीं है, ठीक है। ये सारी यूनिक कैरेक्टर्स हैं, तो तुम किसी से भी स्वैप कर दो। मतलब इनडायरेक्टली मेरे को ये करना चाहिए था कि आखिरी वाले एलिमेंट से स्वैप कर देना चाहिए था, मेरे को लूप, वैसे भी ये लूप चलेगा ही नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब इतना सा है सर। सो इट वॉज डन इन ऑर्डर ऑफ n, and this was in this problem. So let's move towards the more interesting problem, which is problem C. So problem C में क्या problem है, मतलब it's not a problem. Basically, like if you have solved the CSCS and like you have watched my in-out DP problems which I have posted on my channel, so ये problem उसी से related थी, and like you could easily catch, मतलब अगर तुमने एक बार भी वो प्रॉब्लम देखी होती CSCS वाली, और या फिर मेरी एक ऊबर की वीडियो भी है जिसमें मैंने I discussed this in-out problems, DP problems, so you would have easily got the idea and you would have easily implemented the solution. So इसमें क्या है basically, like जैसे तुम्हारे पास एक ट्री दे रखा है, तुम प्रॉब्लम पढ़ सकते हो वीडियो रोक कर, और लाइक यू कुड रीड दिस प्रॉब्लम आउट, एंड आई वुड गेस कि अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो देन यू हैव इंटेंडेड और सॉल्व दिस कॉन्टेस्ट आउट। सो लाइक दिस इज योर ट्री, सो इसमें क्या है, ये इन्फेक्टेड है, तो एक ये तुम n ऑपरेशंस कर रहे हो, सो इस केस में n तुम्हारा 7 है, बिकॉज 7 नोड्स आर देयर। तो 7 टाइम्स तुम ऑपरेशन करोगे, तो तुम क्या करोगे कि जैसे ये इन्फेक्टेड है तो तुम इसको डिलीट कर सकते हो 2 वाले नोड को, तो ये तुम्हारे 6 और 7 बच जाएंगे, इन्फेक्ट नहीं होंगे, बट ये 3 वाला इन्फेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब तुम 4 को डिलीट कर दो तो ये 5 इन्फेक्ट हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली तुमने सिर्फ 2 ही नोड्स बचाए, ठीक है। तो अगर तुम्हारे ट्री थोड़ा सा और भी बड़ा होता, लाइक समवॉट लाइक दिस 6 7 8 9 10 11, तो अगर तुम इस वाले नोड को लेट से डिलीट कर देते तो तुम्हारे ये वाला इन्फेक्टेड हो जाता, फिर तुम इस वाले नोड को डिलीट कर देता ताकि ये 2 नोड्स बच जाएं, फिर ये इन्फेक्टेड हो जाता। तो इनडायरेक्टली ये 3 इन्फेक्टेड हो गए, ये डिलीट हो गए, तो तुमने कितने नोड्स बचा लिए, 1 2 3 4 5 और 6 नोड्स बचा लिए। तो तुम्हें बताने कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्फेक्टेड नोड्स कितने बचा सकते हो तुम ये भी कर सकते थे कि इस वाले को डिलीट कर देते और ये वाले सारे नोड्स इस वाले को इन्फेक्टेड कर देते, ये इन्फेक्टेड होता तो फिर ये वाला इन्फेक्टेड करते ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर तो इसे डिलीट करके 2 बचा सकते थे, तो ये 2 बच जाते, 1 2 3 4 5 बच जाते, 5 नहीं
ये 4 बच जाते तो इस केस में भी 6 आंसर आ जाता। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम में मैंने क्या किया है, लाइक फर्स्टली अगर तुम सपोज कर रहे हो कि ये तुम्हारा नॉट इन्फेक्टेड है, ठीक है, या फिर नॉट डिलीटेड है, यू हैव नॉट डिलीटेड इट, तो अगर तुमने इसे डिलीट नहीं किया तो फिर तो तुम, और या फिर तुमने अगर इसे डिलीट कर दिया, अगर तुमने, मैं कहता हूँ अगर तुमने इसे डिलीट कर दिया तो ये वाले सारे नोट सेफ हो गए, ये चारों नोट सेफ हो चुके हैं क्योंकि तुमने इसे डिलीट कर दिया। तो अगर तुम एक स्टेट ये बना लो डीपी की कि डीपी ऑफ वी ज़ीरो विच इज़ डिनोटिंग मी कि डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है, लेट्स से डीपी ऑफ वी ज़ीरो डिनोट कि वी वर्टेक्स डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर ये डिलीट हो गया है तो इसके जो भी साइज सब ट्री का साइज होगा, जैसे इस केस में ये 4 है, 1 2 3 4 5 है इसका सब ट्री का साइज, तो 5 माइनस 1 साइज ऑफ सब ट्री माइनस 1, क्योंकि वो खुद तो डिलीट ही हो चुका है तो वो तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, ये सेफ नोट्स हैं, 4 ही सेफ हुए। तो डी पी ऑफ वी ज़ीरो तो तुम हर एक उसके लिए निकाल लोगे, बट वॉट आई एम इंटरेस्टेड इज इन डी पी ऑफ वी ऑफ 1, ठीक है, ये तुम्हें हर नोड के लिए चाहिए और फिर तुम इसके लिए रिटर्न कर दोगे डी पी ऑफ 1 1, तुम रूट के लिए ये चीज़ रिटर्न कर दोगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, तुम क्या करो कि एक डी एफ एस कॉल करो इस पर भी, लेट से तुमने सपोज किया कि तुमने इसको भी नॉट डिलीट किया है, इसको भी डिलीट नहीं किया और इसको भी डिलीट नहीं किया। अगर तुम्हारे यहाँ पर ये दे रखा है कि 3 नोड्स मैक्सिमम होंगे एक सब ट्री में, तो तुम तीनों को मान लो कि तुमने तीनों को डिलीट नहीं किया, ठीक है, वही मैंने किया है इसमें कि मैंने तीनों को मान लिया कि तुमने डिलीट नहीं किया, नॉट डिलीटेड मान लिया मैंने, उससे मैंने अपने आंसर की वैल्यू निकलवा ली है। अच्छा, अब मैंने ये चेक किया अगर तुम इस लूप में जा ही नहीं रहे हो, उसका मतलब क्या है कि तुम रूट नोड पे ही बैठे हो, तुम यहाँ पर पहले से ही बैठे हो, तो इस केस में तो सेफ अनसेफ की कोई बात ही नहीं रही, तुम 0 ही रिटर्न कर दोगे। तो मैंने वहाँ पर डी पी ऑफ वी 1 करके 0 रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब इन केस तुम यहाँ पर नहीं हो, इस वाले उसमें नहीं हो, ठीक है, तुम ऊपर की साइड हो गई, तो अब तुम क्या कर रहे हो, मैंने क्या किया है कि मैंने इनकी वैल्यू तो निकाल ली कि इनको डिलीट करे बगैर क्या होगी। अब तुम एक को डिलीट करो तो उसके लिए वैल्यू क्या होगी तुम्हारी, डी पी ऑफ नेबर 0, मतलब मैंने क्या बताया था 0 के अंदर मैं डिलीटेड रख रहा हूँ, तो डी पी ऑफ अच्छा ये मैंने डिलीटेड ऑफ 0 भी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखे हैं सारे साइजेस, ठीक है, तो उसमें से मैं -1 कर दूंगा तो ये मेरे सेफ नोट्स आ जाएंगे, और मैं माइनस कर दूंगा डी पी ऑफ नेबर 1। मैंने ये क्यों किया नेबर ऑफ 1, यहाँ पर मैंने सब स्टोर कर लिए थे कि मेरे डी पी ऑफ वी 1 क्या हो रहा है। तो अब जब मैं उस नेबर को मैंने डिलीटेड मान लिया, ठीक है, तो मैं उसमें से नॉट डिलीटेड वैल्यू तो सब्ट्रैक्ट करूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पर आंसर में नॉट डिलीटेड ऐड कर दिया था, ठीक है, तो ये मैं अपनी मैक्सिमम वैल्यू निकलवा लूंगा यहाँ से, और मैं डी पी ऑफ वी वन डिनोट्स डी पी ऑफ वी नॉट डिलीटेड, उसके अंदर मैं आंसर प्लस मिनिमम आंसर जो भी मैंने ये टेम्परेरी वेरिएबल्स के नाम दे रखे हैं उनको स्टोर करके रिटर्न कर दूंगा मैं आंसर को। तो सिंपली मतलब ये 2 बार ये तुम्हें लूप चलाना था एंड इट वुड बी इजीली सॉर्टेड आउट। तो अब मैं ना इस पर एक ड्राई रन करके दिखाता हूँ तुम्हें, ये वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो सबसे बड़ा भी है और सबसे सही भी लग रहा है मुझे एंड वाला, ताकि तुम्हें समझ आए कि एक्चुअली में बिहाइंड द सीन्स चल क्या रहा है, एंड देन वी विल रैप अप दिस वीडियो एंड so just bear with me, I'll draw this out, 2 3 1 2 2 oh shit 2 3 3 4 4 5, ठीक है, 4 6 3 7, just bear with me for few seconds। मुझे लगता है थोड़ा सा अनइंटरेस्टिंग सा हो जाता है वीडियो में, like I do draw and you won't be able to see it, so थोड़ा सा माइंड बॉगलिंग हो जाता है। 11:14 एंड 11:15, ठीक है, तब तुम्हारे पास ये तुम्हारा ट्री है, ठीक है, दिस इज योर ट्री एंड दिस इज इन्फेक्टेड, सो dp of v0 which denotes me कि a particular node is deleted। तो मैंने यहाँ पर ये पहले से ही एक DFS नाम का मतलब DFS ही किया है कैलकुलेट साइजेस में, जिसके अंदर मैं वर्टेक्स रूट नोड 1 पास कर रहा हूँ, उसका पेरेंट जो कि -1 है वो पास कर रहा हूँ। सो ये क्या कर रहा है, ये हर नेबर पे जा रहा है और आंसर के अंदर कैलकुलेट करके ला रहा है साइजेस को और रिटर्न कर दे रहा है आंसर +1 1 खुद के लिए।
तो इससे मेरे पास हर सब ट्री का साइज आ रहा है। और अगर तुम्हें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, सो आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन अनदर वीडियो, जो CSCS सबऑर्डिनेट्स प्रॉब्लम नाम की एक वीडियो है मेरे चैनल पे, यू कुड वॉच दिस आउट। वहाँ पे मैंने समझाया ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो इफ़ दिस थिंग इज़ क्लियर, तो DP(V0) तो हमारा सॉर्टेड हो गया। अब हमें DP(V1) करना है। तो DP(V0) इसके केस में 1 होगा, इसके केस में 1 होगा, इसके केस में 2 होगा, इसके केस में 1, इसके केस में 2, 3, 4, 1, 6, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 6, 12, 13, ये 13 होगा, ठीक है। ये DP(V0) होंगे सब। अब तुम्हें DP(V1) चाहिए, तो मैंने क्या किया है कि मैंने इस वाले के नेबर्स में ये मान लिया है कि मैंने इसको भी डिलीट नहीं किया और इसको भी डिलीट नहीं किया, और ये अपने आंसर कैलकुलेट करवा लिए, ठीक है। वो तुम्हारे यहाँ से आंसर कैलकुलेट होके आ रहे हैं इसके सारे नेबर्स से, ठीक है। वो आंसर लेट से सपोज आंसर ही है। अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि अगर मैंने इसको मान लिया कि ये, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोबारा से उस लूप को रन कर रहा हूँ। अब मैंने इसको मान लिया कि नॉट डिलीटेड है, या सॉरी, इसको मैंने मान लिया कि डिलीटेड है, ये डिलीट हो चुका है। तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा? एक तो जो इसका नॉट डिलीटेड वाला पार्ट था, जो कि मेरा आ गया होगा DP(1) के अंदर, क्योंकि वो रिकर्सिव है, वो मेरा कैलकुलेट हो चुका होगा, क्योंकि हर नेबर के लिए मैंने कैलकुलेट करके रख लिया है। तो एक तो नॉट डिलीटेड वाला सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि मैंने आंसर के अंदर वो इंक्लूड कर लिया था। उसके अंदर मैं क्या ऐड करूँगा, इसका साइजेस, जो कि मेरा DP(V) इंक्लूडेड के अंदर है, V डिलीटेड के अंदर है, तो साइजेस ऑफ V-1 ये करूँगा मैं हर एक के लिए। तो वही मैंने यहाँ पर किया है। तो मैंने यही किया है कि DP(neighbor) -1, और ये 0 और 1 ये डिनोट कर रहा है कि ये डिलीटेड है, ये डिनोट कर रहा है कि ये नॉट डिलीटेड है, ये डिनोट कर रहा है कि ये डिलीटेड है, और ये डिनोट कर रहा है नॉट डिलीटेड है। ये सब ट्रैक कर दिया, ये मैक्सिमम वैल्यू निकालवा ली है, और वो V1 के अंदर स्टोर करके रिटर्न कर दिया। तो ठीक है, अब इसके लिए देखते हैं कोड में कैसे चलता। तो अब तुम क्या चेक करते हैं यहाँ पे कि, ठीक है, इसके लिए लेट सपोज क्या आंसर आ रहा था तुम्हारा आंसर ही। तो अब तुम क्या चेक करते कि इसके लिए 6, इसको इंक्लूड करके क्या आंसर आ रहा है, इसको डिलीट कर, नॉट डिलीट करके, इसको बिना डिलीट करे क्या आंसर आ रहा है, वो तुम्हारे ये कैलकुलेट कर लेते हैं रिकर्सिव फंक्शंस, एंड ये प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व हो जाती है। सो यू कुड लुक दिस कोड आउट एंड यू कुड ट्राई रन इट, लाइक ये like it was kind of like DP with DP, so yeah, you would get a better understanding, और in out problems की वीडियो देख सकते हो तुम for better clarity on this problem. So yeah, that was it in this contest, in this problem. So yeah, thanks for watching out the video, and if you like my content and if you like my channel, then you could subscribe to my channel. It would give me huge motivation to build such kind of videos for you. So see you again. Thank you. Bye.